Hello everyone, welcome you all to today's science class. Today we'll be studying first chapter of your second semester. So students, hopefully we have completed the semester 1 and this is the beginning of semester 2. In this chapter we are going to learn about the circulatory system and excretory system. ये डायग्राम देखो स्टूडेंट्स, दिस इज द डायग्राम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी. यहाँ पे हार्ट मेंशन किया हुआ है और किडनी. देयर आर सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो बनता है इट इज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम दैट कंप्राइजेस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. वो ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यू से और टिश्यूज बनते हैं सेल से. सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ लाइफ. ठीक है, तो सेल हो गया एकदम स्मॉलेस्ट. बहुत सारा सेल्स कलेक्टिवली बनता है टिश्यूज. टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं ह्यूमन बॉडी. ठीक है, heart is an important organ in our circulatory system and kidney is the main organ of the excretory system in the body. तो circulatory system के लिए कौन सा organ important है? heart. और excretory system के लिए kidney. The circulatory system helps in transporting materials throughout the body. Circulating मतलब moving. By the word circulating we mean moving. तो जो भी materials inside our body है, the circulatory system helps in transporting those materials throughout the body. The excretory system helps to remove the waste from the body in the form of urine. अब है, पढ़ेंगे पहले हम circulatory system. The circulatory system is responsible for transporting nutrients, water and oxygen to the entire body. तो ये जो पहले हम बोल रहे थे कि जो materials रहता है inside our body, तो ये materials क्या क्या है? न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन. ये ही ट्रांसपोर्ट करता है जो सिस्टम पूरे बॉडी में, उस सिस्टम को हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स: हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. हैव यू एवर फेल्ट योर हार्ट पंपिंग और बीटिंग? अगर आप मेडिटेशन पे बैठते हो या फिर इफ यू आर इन अ वेरी क्वाइट प्लेस एंड अ पर्सन नेक्स्ट टू यू इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, so then you can hear his or her heartbeat. You can also feel your heartbeat if you are in a deep meditation. So when you run very fast, especially exercise करते वक्त या when you are very tensed, तब we can hear our heartbeat loud and fast. Observe the location of the heart in the picture given below. The heart is located just in the middle of the chest, tilted towards the left side. So heart middle of the chest में है, in the 5th intercostal space, और वो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा tilted है. You don't have to know a very details about the location of the heart, but इतना जान के रखो कि middle of the chest में है and tilted towards the left. Heart is a hollow muscular organ that pumps the blood through the circulatory system. ठीक है, this is the definition of heart. Heart is made up of muscle all total. It is a pear shaped structure. It has 4 chambers and 4 valves. ठीक है, इसका 4 chambers होता है, 2 atria और 2 ventricle. ठीक है, and 4 valves होते हैं, 2 semilunar valves, एक tricuspid valve और एक bicuspid valve. ठीक है, 1 tricuspid valve, 1 bicuspid valve and 2 semilunar valves. Function of the heart. The heart continuously pumps the blood to the whole body through blood vessels. अब ये हार्ट जो है ये इसका काम है ब्लड पंप करना. ये पंप करके ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. द हार्ट बीट्स ऑल द टाइम. ऑब्वियसली इफ इट स्टॉप्स देन वी विल डाई. द हार्ट बीट्स अबाउट 3 billion times during an average lifetime. We cannot live if our heart stops beating. ठीक है, this is the function of heart. So what is the function of heart? The function of heart is to pump the blood throughout the body by the blood vessels. Now, blood is a substance that constantly flows through our bodies. Blood is pumped by the heart and travels through blood vessels. Blood बने खून होता है. ये खून जो है, this blood only carries the oxygen
the nutrients through the blood vessels and it transports all over the body. It carries nutrients, water, oxygen and waste products. Blood contains a protein called hemoglobin. It combines with oxygen and make our blood red. तो how our blood is red? कैसे होता है? Hemoglobin is responsible for it. Hemoglobin is a protein compound. रोल ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी क्या है वो नॉलेज ट्री में देखिए. ऑक्सीजन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ब्रीदिंग प्रोसेस एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स इट बर्न्स आवर फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड हीट. दस इट सपोर्ट्स लाइफ. सो ऑक्सीजन इज हेल्पिंग अस इन द ब्रीदिंग प्रोसेस एज वेल एज इन एनर्जी प्रोडक्शन. और कुछ केमिकल्स के हेल्प से ये खाना को भी डाइजेस्ट करने में और उससे हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है. इट इज अ लाइफ सपोर्टर. नाउ व्हाट इज ब्लड वेसल? ब्लड वेसल्स आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कैरिंग ब्लड थ्रू द ऑर्गन्स. आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब मिलाकर ब्लड वेसल्स फॉर्म होते हैं. दे कैरी न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी. यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में आर्टरीज एंड वेन्स, और आर्टरीज डिवाइड हो जा रहे हैं इनटू थिनर वेसल्स. सिमिलरली वेन्स भी टूट जा रहे हैं. इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू मेनी अदर स्मॉलर वेसल्स जिसे हम कैपिलरीज कहेंगे. Observe the red colored and blue colored vessels in the picture. The red colored vessels are called arteries and the blue colored vessels are called veins. Arteries generally carry oxygen-rich blood and veins carry the carbon dioxide-rich blood. Capillaries are thin blood vessels that connect an artery to a vein. तो capillaries का function होता है it connects the vein and the arteries. ठीक है? Vein जो है ये deoxygenated blood carry करता है and artery का function है ये oxygenated blood carry करता है. ठीक है? जस्ट फॉर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, सम डिटेल्ड नॉलेज मैं ये बता रखती हूँ कि हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लाया जाता है हार्ट में विद द हेल्प ऑफ वेन्स. ठीक है? हार्ट क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरती है, वो ब्लड को वो लंग्स में ट्रांसफर करता है. फिर लंग्स क्या करता है, प्यूरिफाई करता है इस ब्लड को और उसे ऑक्सीजन रिच ब्लड बनाता है. फिर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस हार्ट में एंटर करता है एंड देन वहां से विद द हेल्प ऑफ लार्जर आर्टरी जिसे आर्टा कहते हैं, दैट अगेन गोज थ्रू द बॉडी. इसीलिए वी कैन सर्वाइव. ठीक है? बॉडी से जो वेन्स है वो कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट. फिर हार्ट से जाता है लंग्स वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजनेटेड बनाता है एंड देन इट अगेन कैरीज टू द हार्ट. फिर हार्ट से लार्जर आर्टरी मतलब जो आउटा है वो हेल्प करता है टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. अंडरस्टूड? ओके, सो दिस वाज अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आपको याद रखना है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं और इसका क्या मैकेनिज्म है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम. द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी क्योंकि ऑब्वियसली हम कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं या गैसेस विच आर प्रेजेंट, इन सबको अंदर जाके प्रोसेस होने के बाद वो कन्वर्ट हो रहा है वेस्ट में. सब कुछ तो न्यूट्रिएंट नहीं बन जाता, राइट? कुछ वेस्ट भी हो जाते हैं. सो दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स नीड टू बी रिमूव्ड आउट, नहीं तो ये टॉक्सिक हो जाता है हमारे बॉडी के लिए. कुछ बॉडी पार्ट्स जैसे कि स्वेट ग्लैंड, स्किन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन एंड किडनी आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. स्वेट ग्लैंड से क्या होता है, वो स्किन में प्रेजेंट रहता है, दैट रिमूव्स वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. लंग्स क्या करता है, इट गिव्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इट रिमूव्स द सॉलिड वेस्ट दैट आर डिस्चार्ज थ्रू द एनस. But the urinary system is the main excretory system of our body that removes waste in the form of urine. ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन कौन सा organs या systems involved है इस excretory system में and which organs are removing what. Parts of the urinary system. अब हम ये पढ़ेंगे. Observe the parts of the urinary system in the picture. Picture देखिए आप.
यहाँ पे दिया है किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी का क्या फंक्शन है? इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव्स वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। फिर दैट यूरिन पासेस टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेटर्स। यूरेटर्स कौन से हैं? जो वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिया है वहां पे एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, वहां से उस ट्यूब्स के हेल्प से यूरिन पास होता है टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिर यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है। दिस यूरिन इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज द पैसेज फ्रॉम विच द यूरिन गेट्स डिस्चार्ज्ड। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी शोइंग फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन। अभी फिल्टर कैसे हो रहा है यहाँ पे वो स्ट्रक्चर में बताया गया है। किडनी को इलेबोरेट करके जूम आउट करके दिखाया गया है। यहाँ पे किडनी में रेनल ट्यूब्यूल्स हैं। फिल्टर्ड ब्लड टू बॉडी, ब्लड एंटर्स फॉर, देखो एक है ट्यूब, वहाँ से ब्लड एंटर करता है फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्टर होने के बाद वो ब्लड वापस बॉडी में चला जाता है और जो वेस्ट होता है दैट यूरिन पासेस थ्रू यूरेटर। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना जान के रखिए, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में था कि पूरे बॉडी से वो हार्ट में जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, देन इट अगेन फ्रॉम लंग्स इट कम्स टू द हार्ट एंड देन इट सर्कुलेट्स ऑल ओवर द बॉडी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है? बॉडी से किडनी में जा रहा है, राइट? एक ट्यूब से वो एंटर कर रहा है किडनी में, वहाँ पे जाके फिल्टर हो रहा है। जो यूजफुल है वो वापस बॉडी में चला जा रहा है फिल्टर होके ब्लड के थ्रू, और जो यूजफुल नहीं है, वेस्ट है, वो यूरिन होकर पास हो जा रहा है थ्रू द यूरेटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब नॉलेज ट्री में देखिए, यहाँ पे डायलिसिस बोला गया है। व्हाट इज डायलिसिस? आवर किडनीज हेल्प टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. In some people, due to some reason, kidneys do not work properly. Those people have to depend on a special kind of machine to remove waste from the body. This machine works as an artificial kidney. This process is called dialysis. So dialysis एक process है उन लोगों के लिए जिनके पास normal natural kidneys नहीं रहते या who have lost its functions, जिनका किडनी का फंक्शन स्टॉप हो जाता है या फिर किडनी डैमेज हो जाता है बीमारी के वजह से या भी एनी अदर रीज़न। सो उन लोगों के लिए डायलिसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। वहाँ पे एक मशीन यूज़ किया जाता है जो कि आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। दिस मशीन वर्क्स एज एन आर्टिफिशियल किडनी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। That was all about your chapter, and here question number 1 will be for your homework because it's just a multiple choice question. Question number 2 क्या है देखिए, what are the role of blood vessels? How are arteries different from veins? तो blood vessels का रोल क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि हमने पढ़ा, it carries the nutrients, waste, oxygen, carbon dioxide and any other materials throughout the body. सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। हाउ आर आर्टरीज डिफरेंट फ्रॉम वेन्स? आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस क्या है? आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड वेन्स कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? गिव द लोकेशन ऑफ द हार्ट, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट क्या है? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। फिर ब्लड वेसल्स का भी तीन पार्ट है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। Understood? Give the location of the heart. It is present in the middle of the chest and tilted towards the left. What are the other organs of our body involved in the process of excretion except kidneys? ये आपको लिखना है। किडनी के अलावा, किडनी तो ओनली यूरिन पास करने के लिए एक सिस्टम है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या है? स्वेट ग्लैंड्स है, लंग्स है ना? स्वेट ग्लैंड्स क्या रिमूव करता है? स्वेट थ्रू द स्किन। एंड लंग्स क्या रिमूव करता है? कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू गैस। हाउ मेनी किडनीज डू यू हैव? व्हाट डू योर किडनीज डू? हमारे पास 2 किडनीज होती है। व्हाट डू योर किडनीज डू? किडनीज का फंक्शन क्या है? फिल्टरिंग ऑफ ब्लड। हार्मफुल जो ब्लड है उसको फिल्टर करके वेस्ट जो यूरिन फॉर्म होता है उसको रिमूव करना, क्योंकि वो टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए, और जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वापस बॉडी में भेज देना। What are the roles of the urinary bladder?
यूरिनरी ब्लैडर का रोल क्या है? टू स्टोर द यूरिन which comes from the kidney through the ureter, and when the bladder is full, it releases the urine through the urethra. Now this will be for your homework, think and answer part and create and learn. This you'll be doing very easy chapter. I hope you understood. So take care. Thank you.